Hello students, today we are going to start with your chapter number 5, that is cost of production, and in that chapter we will study about real cost, opportunity cost and monetary cost. Students, I told you that I was going to take your test for chapter number 1 to 4, but due to certain reason it has been postponed. That is why I have not taken your test for chapter number 1 to 4. Let us see when it will be declared by the principal ma'am. I will take your test for chapter number 1 to 4. Right now we are concentrating on 12th standard first, then we will take for 11th standard. That is why your test has not been taken. Okay. So with this note, let us start with your chapter number, you can say 5, that is cost of production, and keep completing your notebooks. All the students are doing very well. 11A, B, both the class, you are doing very well. I am proud of you kids. You are doing very well in this, you can say, adverse situation. Okay, so with this note, let us start with your lecture. Students, so we will start with your chapter number 5 today. That is cost of production and concept of revenue. Now, cost of production is something which includes the 4 factors of production जो है आपके land, labor, capital and entrepreneur. इन चारों की जो cost include होती you can say including the profit that would be included in your cost of production, and revenue is something you would say in economics is earning when you sell this product in the market. जो भी product है जब इसको आप market में sell करते हो, what you will earn, that is considered as your revenue. So cost of production is your expense. Cost of production क्या है? It is the expense which is done for you can say making a product of finished goods, and revenue is earning which you get after selling these finished goods. ठीक है? Let us move further. Here you can see introduction में हम देख लेते हैं कि cost और revenue क्या है मैंने बता दिया. Why we need to find out this cost and revenue? What is the need for that? So the first thing is we need to determine the price of a commodity. Now if you don't know the cost of production, suppose आपको ये नहीं पता कि what is your cost of production, that means you won't know at what price I would sell. If I know that the unit which I made is costing me 100 rupees, so I will sell it for 100 or more than 100. वो यूनिट को मैं 100 या उससे ज़्यादा में बेचने की कोशिश करूँगी. अगर मैं 100 यूनिट्स का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और मैं अगर 100 में बेचती हूँ, दैट मीन्स आई विल हैव नो प्रॉफिट नो लॉस. इट विल बी नो प्रॉफिट नो लॉस. अगर मैं 110 में बेचती हूँ, सो आई विल गेट इट 10 रुपीज़ प्रॉफिट, और अगर 90 में बेचती हूँ तो आई विल गेट 10 रुपीज़ लॉस. ठीक है. So first of all, you need the cost of production to find out the price of a commodity. And what is price? Price is equal to cost of production plus profit plus tax, if any. जो भी tax, profit और सबको add करने के बाद में जो निकलता है, that is your cost of production, price of a product. ठीक है. It also gives, now the today's world is a competitive world, and you cannot have you have to face the competition. ठीक है. तो to face the competition you have to always take the reasonable profit. So either you want to take the reasonable profit or maximum profit or super profit. It depends on what situation you are. If you are monopoly, अगर आप monopoly में हो तो you can take super profit, but if you are in imperfect competition or oligopoly, you have to take reasonable or meager profit you can take. Reasonable profit मतलब 10%, 20% is reasonable, 30% is reasonable profit, but 200%, 300% profit is your super profit. ठीक है. So it also helps you to gives the guideline considering your situation that what should be your profit. Next is it also helps you to maximize your profit. For that we make use of the marginal cost, concept of marginal cost. What is the concept of marginal cost? That we will study as and when we'll move further in this chapter. Okay. It also helps to understand the behavior of a firm. Means what would be the, suppose if the price of steel increases, ठीक है, अगर स्टील की प्राइस इंक्रीज होगी तो आई एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ कार विल इंक्रीज.
ठीक है. सो आई कैन अंडरस्टैंड ये जो कॉस्ट की जो कॉन्सेप्ट्स हैं, देट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ अ फर्म कि भाई why the firm has increased the price or why have they have decreased the price and vice versa and anything like that. ठीक है. It also helps you to get the guideline of how to administer the business, determine the monetary cost, etc. ठीक है. This is all about your introduction part. Let us move further to your real cost. Different concepts of cost. We'll go to different concepts of cost, and in that we will see what is your real cost. अच्छा, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देती हूँ. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. व्हाट इज़ रियल कॉस्ट? अब रियल कॉस्ट क्या होती है? इट इज़ गिवन बाय द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एंड विच इज़ समथिंग विच इज़ एप्लीकेबल ऑन लैंड, लेबर, कैपिटलिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर्स. इन चारों पर ये कॉस्ट अप्लीकेबल है. दिस इज़ मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल इन नेचर. ये कैसा है? दिस इज़ साइकोलॉजिकल. अब आप बोलोगे इकोनॉमिक्स में साइकोलॉजी कहाँ से आ गई? हम तो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और आप हमको साइकोलॉजी पढ़ा रहे हो. तो बेटा ये कॉन्सेप्ट जो है, इट इज़ अ साइकोलॉजिकल मीन्स इट टेक इन कंसिडरेशन द फटीग or tiredness of an individual while doing a work. For example, if you are supposed to do homework or 4 subjects, आज मैंने इको का लेक्चर लिया, फिर आपके अकाउंट्स का भी लेक्चर था, इको का भी था, इंग्लिश का भी था, बीओ का भी था. 4 लेक्चर हुए आज. अब आपको पहले मैंने होमवर्क दिया ऑफ इकोनॉमिक्स, तो यू डिड इट वेरी वेल. आपने ब्लैक पेन यूज़ किया, ब्लू पेन यूज़ किया, है ना, अच्छी हैंड राइटिंग एंड ऑल दैट. फिर आपका आया और आपने 12 बजे तक भेज दिया. आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, यू कैन से आपका नंबर आया बीओ का होमवर्क का, वो भी आपने ठीक ठीक किया. फिर बाद में दूसरे सब्जेक्ट का आया. धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आप लिख लिख कर थक गए हो, तो आपकी हैंड राइटिंग क्या हो जाएगी, हैंड राइटिंग की क्वालिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. ब्लैक ब्लू पेन सब चलेगा, ऐसे लीटे 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 मार रहे हैं, है ना, किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्या लिख रहे हैं. ठीक है. तो व्हाट मीन्स, दैट मीन्स यू आर, दैट हैज़ रिड्यूस योर एफिशिएंसी. मोर वर्क रिड्यूसेस योर एफिशिएंसी. तो उसमें क्या चाहिए, यू नीड अ ब्रेक. मतलब एक होमवर्क करने के बाद में आधा हाफ एन आवर का अगर ब्रेक ले लोगे, देन इट वोंट बी अ बर्डन. यस और नो? सो वाइल डूइंग अ वर्क, वॉट एवर साइकोलॉजिकल मतलब दिमाग पे, और फिजिकल बर्डन that an individual feels, which reduces his efficiency, जो उसकी efficiency को कम कर दे और capacity to work जिसको affect करे, if it is known as your real cost. For example, you can say your mom, when she cooks for 5 people, रोटी की साइज़ शेप सब अच्छा होगा, एकदम गोल गोल बनेगी, है ना. अब 50 लोगों की रोटी बनानी है तो रोटी टेढ़ी मेढ़ी भी होगी, कच्ची पक्की भी होगी, सब कुछ होगा. बिकॉज शी इज़ हैविंग अ फटीग एंड शी इज़ हैविंग बोर्डम. एक ही काम कर करके हम थक जाते हैं. फिर कभी कभी क्या हो जाता है, काम की टाइमिंग का भी प्रॉब्लम होता है कि जल्दी काम करना है तो स्ट्रेस हो जाता है. देन वी फेस टेंशन कि काम कंप्लीट होगा कि नहीं होगा. All this reduces your capacity to work, that is known as real cost. Now this real cost cannot, it is present, no one can deny कि real cost present नहीं है, but it cannot be put in terms of money. Money में हम इसको convert कर सकते नहीं हैं. You can't show it in your book of accounts that this is your real cost. ठीक है. Everyone faces it, but this is qualitative in nature. ये जो कॉस्ट है ये कैसी है, इट इज़ अ क्वालिटेटिव कॉस्ट, क्वांटिटेटिव नहीं है. यू कांट पुट इट इन कि मेरे को 100 किलो फटीग हुआ है या 500 ग्राम टेंशन हुआ है ना, या फिर 50 रुपये का स्ट्रेस हुआ है. यू कांट पुट इट दैट वे. सो रियल कॉस्ट is there. We all agree that real cost is present, but you can't, you can say, measure this real cost. इस real cost को measure करना, it is a really difficult task. ठीक है. तो fatigue है, boredom है, stress है, we accept it, but you cannot put it in a, you can say, numbers. You cannot put this cost in numbers. Okay, this is your real cost. Second cost is your opportunity cost. Now opportunity cost is again an interesting thing. Suppose all of you are
completed your 10th standard and you opted for commerce. 10th standard कंप्लीट करने के बाद में आप लोगों ने कॉमर्स लिया. अगर आपने कॉमर्स लिया तो साइंस एंड आर्ट्स आर योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी, नॉट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी आर योर अपॉर्चुनिटी. अगर आप कॉमर्स नहीं लेते तो आपने साइंस लिया होता, साइंस नहीं लिया होता तो आपने आर्ट्स लिया होता. ठीक है. सेम वे इफ सम ऑफ द स्टूडेंट्स 10th कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, अगर किसी बच्चे ने आर्ट्स लिया है, क्योंकि मैं कॉमर्स आर्ट्स दोनों क्लास को पढ़ाती हूँ, तो साइंस एंड कॉमर्स आर योर अपॉर्चुनिटी. सो व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अ कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट alternative which we leave to alternative left. I have to complete or do first alternative. First alternative choose करते हैं तो हम we have economic activities. You can say we have number of alternative. We have unlimited alternative. You have to make चॉइस. सपोज अगर इकोनॉमिक व्यू पॉइंट से बात करें तो लैंड है. सो अगर उस लैंड पे, एक लैंड पे मैं एग्रीकल्चर कर रही हूँ, फार्मिंग कर रही हूँ, लैंड है, इट इज़ यूज एज फॉर फार्मिंग. अगर मैं उस पर फार्मिंग कर रही हूँ तो हाउसिंग इज़ माई अपॉर्चुनिटी. मतलब मैं उस पर घर भी बना सकती हूँ ना, एक मकान के ऊपर, ज़मीन के ऊपर हम घर बना सकते हैं. तो अगर हम फार्मिंग कर रहे हैं तो हाउसिंग इज़ माई अपॉर्चुनिटी. अगर मैं घर बनाती हूँ तो फार्मिंग इज़ माई अपॉर्चुनिटी. So it is you can say option which you have left. Now we put it in numbers. Means for example, land है. If I am doing farming, I earn 1 lakh rupees at the end of the year. उस वहीं पर अगर मैं फैक्ट्री लगाती हूँ तो मैं at the end of the year कितने करूँगी? 10 crore I will earn. So the opportunity cost, मतलब फार्मिंग इज़ नॉट बेस्ट ऑप्शन. मैं फार्मिंग करूँगी तो आई एम लूजिंग, बट अगर मैं फैक्ट्री लगाती हूँ तो आई एम अर्निंग, बिकॉज आई एम नॉट लूजिंग मोर देन वॉट आई एम अर्निंग. सो योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो होनी चाहिए जो हमेशा कम हो. अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा होती है मतलब यू आर अर्निंग लॉस. समझ आए? फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम वर्किंग इन कंपनी ए, मैं कंपनी ए में कर रही हूँ और मैं 10,000 कमा रही हूँ, और मैं कंपनी बी में काम करूँगी तो आई एम अर्निंग 20,000. सो इफ़ आई एम अर्निंग इन कंपनी ए, माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ 20,000, और अगर कंपनी बी में काम करती हूँ तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ 10,000. सो व्हाट शुड आई चूज़? आई शुड चूज़ कंपनी बी, बिकॉज वर्किंग इन कंपनी ए विल बी अ लॉस. I earn 20,000 but I lose 10,000. But if I work in company A, I will earn 10,000 but I will lose 20,000. Okay? Okay. Let us move further. Opportunity cost में क्या problems होती है? Opportunity cost की problem ये है कि one factor use वाले जो होते हैं, मतलब for example किसी चीज़, मैंने यहाँ पे क्या बोला, opportunity cost they should be have 2 options. Like for example unemployed, or you can say medicine. For example medicine, इसका एक ही यूज़ है क्या? टू ट्रीट अ पर्सन. उसका कोई सेकेंड ऑल्टरनेटिव होगा नहीं. सो वन फैक्टर यूज़ की हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड नहीं कर सकते. देन देर आर स्पेसिफिक यूज़ जो भी है, वही मैं मेडिसिन का एग्जांपल दूंगी कि इट इज़ जस्ट यूज टू क्योर, उसका सेकेंड कोई ऑप्शन है ही नहीं. सो इन दैट केस व्हेन देयर इज वन यूज प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, इट इज़ यूज ओनली फॉर टूथपेस्ट. फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट का सेकेंड यूज़ क्या होगा? क्या तो आप दांत साफ करने के लिए यूज़ करोगे और कहाँ यूज़ करोगे? ठीक है. तो वन फैक्टर्स और स्पेसिफिक यूज प्रोडक्ट्स के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड करना इज़ अ डिफिकल्ट जॉब. Let us move further to the monetary cost. The name itself suggests monetary cost. The name itself suggests, what does it suggest? That the cost of all the factors in terms of money. The cost of all the factors in terms of money is your monetary cost. ठीक है? Like for example, car. The monetary cost of your car in first year was 1 lakh. And second year it was 80,000 and third year it may be 70,000. अब ये जो कार है ये आपकी बहुत प्यारी है,
आप उसको कोई बोले ना कि ले मेरे को ये कार तो 10 लाख में भी बेचे तो नहीं बेचूंगी क्योंकि दिस इज माई फर्स्ट कार. यू मे हैव इमोशनल वैल्यू ऑफ ₹10 lakh फॉर दिस कार, बट actual value, monetary value of that car would be 70,000 only. So you have to put everything in terms of money. Yes or no? Maybe for example antiques है ना, तो antiques की वैल्यू लाखों में होती है, ठीक है, तो that is your monetary cost. Okay, let us move further. 3 types of cost. Next, short term and long term cost. शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कॉस्ट देख लेते हैं हम लोग. मॉनेटरी कॉस्ट क्लियर हो गया. सॉरी बेटा. हाँ. सी देर आर शॉर्ट टर्म लॉन्ग कॉस्ट कम कॉस्ट हम लोग ये डायग्राम से ही समझ लेते हैं. शॉर्ट टर्म कॉस्ट एंड लॉन्ग टर्म कॉस्ट. शॉर्ट टर्म में 2 तरह की कॉस्ट होती है, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट क्या होती है? विच डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द प्रोडक्शन. फॉर एग्जाम्पल इन अ क्लास देर आर 50 स्टूडेंट्स. ऑन 50 स्टूडेंट्स वी नीड 1 टीचर. ठीक है, अगर वो स्टूडेंट्स 55 हो जाते हैं देन ऑल्सो 1 टीचर. ठीक है, अगर वो स्टूडेंट 60 हो जाता है देन ऑल्सो 1 टीचर किसी क्लास में, एंड अगर वो 66 भी हो जाते हैं देन ऑल्सो 1 टीचर. सो कॉस्ट till 66 students is fixed for teacher. ठीक है, लेकिन अगर एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स है तो वी नीड 50 बेंचेस. अगर 1 person 1 bench हो, फॉर एग्जाम्पल 60 स्टूडेंट्स है तो वी नीड 60 बेंचेस, 70 है तो 70. सो द कॉस्ट ऑफ बेंच is a variable cost which increase with the increase in the number of students, but cost of teacher is a, you can say, fixed cost. क्लास में बेंच जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है, बट टीचर जो है दैट इज फिक्स कॉस्ट. इवन इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीजेस टिल 66, आई एम सेइंग टिल 66, द कॉस्ट विल बी सेम. हमको एक ही टीचर को सैलरी देनी है. ठीक है, तो दैट इज योर फिक्स कॉस्ट. द फिक्स कॉस्ट इज विच डज नॉट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन और डज नॉट डिक्रीज इन द डिक्रीज इन द प्रोडक्शन. वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो कॉस्ट अगर प्रोडक्शन बढ़ता है तो इट विल इंक्रीज एंड द प्रोडक्शन डिक्रीज देन इट विल डिक्रीज. दिस इज योर फिक्स कॉस्ट एज वेल एज वेरिएबल कॉस्ट. एंड इन फिक्स कॉस्ट वी हैव एवरेज फिक्स कॉस्ट. एवरेज फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल प्रोडक्शन. मतलब सपोज हमने टोटल फिक्स कॉस्ट आपकी 10 लाख है एंड यू हैव प्रोड्यूस 1 लाख यूनिट्स. 4 5 2 3 4 5 10 lakh है ना. सो योर एवरेज फिक्स कॉस्ट वुड बी 10 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, दैट इज 10. ठीक है, एंड वेरिएबल कॉस्ट अगेन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मतलब यही हुआ कि फिक्स कॉस्ट एवरेज कॉस्ट जो है वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल प्रोडक्शन. ये जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको जब हम प्रोडक्शन से डिवाइड करते हैं देन वी विल गेट योर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज कॉस्ट पर यूनिट. और एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को जब हम प्लस करते हैं तब हमको टोटल कॉस्ट भी मिल जाती है. ओके, दैट विल स्टडी फर्दर. ओके, नाउ इन लॉन्ग टर्म देयर इज नो सच क्लासिफिकेशन. ऑल द कॉस्ट आर in long term all the costs are variable, because in long term there would be the certain changes. कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैंने जो बताया टीचर कि टीचर की कॉस्ट इन शॉर्ट टर्म विल बी सेम, बट एज द टाइम इंक्रीजेस, मतलब आफ्टर 2 years टीचर विल इंक्रीज इट्स सैलरी. टीचर एक ही सैलरी पे 10 साल तो काम नहीं करेगी ना. सो आफ्टर 1 year द सैलरी ऑफ द टीचर विल इंक्रीज. So even the cost of teacher will increase in long term. So in long term all the costs are variable. ये एक explain the statement भी आता है that all the costs are variable in long term, because monetary cost change होती है in long term. That is why all the costs will change in a longer time period. Okay, so this is all about your type of cost. We will stop here till your average fixed cost and this. Next time we will understand your diagram of fixed cost as well as variable cost. आप यहाँ तक आज complete कर लेंगे सभी बच्चे, complete till this point. Okay, so your homework for today will be, write down
explain various concepts of cost. Okay, we'll continue with this in the next class. So I want all of you to stay home, stay safe, and prepare for your test. Okay, goodbye for now, students.